अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2026 इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम विद बेटर हेल्थ एजुकेशन बिकॉज पर कैपिटा इनकम मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन कैप्चर ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इंडिकेटर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर द ओवरऑल डेवलपमेंट लेवल ऑफ पाकिस्तान इन UN रिपोर्ट। Right answer is Human Development Index (HDI). HDI combines income, education and life expectancy to access development। और वैसे जो HDI है वो ब्रेन चाइल्ड है महबूबुल हक का, जो कि पाकिस्तानी थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज पाकिस्तान अर्ली 5 year plans mainly followed which development strategy? Import substitution industrialization is the right answer, and it focused on reducing imports and promoting domestic industries। जो पाकिस्तान का पहला फर्स्ट ईयर प्लान था वो 1955 में आया था, 5 year प्लान, और फर्स्ट 5 year प्लान 1955 से 1960 तक था। और 2000 से पहले 8 5 year प्लान्स पाकिस्तान में आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान हैज़ बीन टू reduce regional and income inequalities because planning aim to attribute resources fairly across provinces and income groups। Question number 5 is land reforms in Pakistan were primarily intended to reduce large land holding and protect tenants because to redistribute land and provide security for farmers। Question number 6 is in the 1970s industrial policy in Pakistan was marked by nationalization of key industries and bank। 1970s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नेशनलाइजेशन हो गई थी इंडस्ट्रीज़ और बैंक की। गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ मेजर सेक्टर टू इम्प्रूव प्लानिंग एंड इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ कॉमन short run measures used by Pakistan to correct balance of payment problem is devaluation or depreciation of the rupee। क्योंकि इससे एक्सपोर्ट जो होती हैं वो चीपर हो जाती हैं एंड इम्पोर्ट जो होती हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फॉरेन एड टू पाकिस्तान इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज it can reinforce aid dependence and increase external debt vulnerability। Over reliance may reduce policy autonomy and increase financial risk। Question number 9 is a key challenge in Pakistan's energy sector is high transmission and distribution losses and circular debt। Inefficient energy system causes financial strain and power shortage। Question number 10 is a major reason for low literacy rate in Pakistan is low public spending on education and poor service delivery। पाकिस्तान जो एजुकेशन पे स्पेंड करता है वो 0.8% ऑफ GDP है, जो कि बहुत लो है, जिसकी वजह से एजुकेशन क्वालिटी जो है वो लो रहती है पाकिस्तान में, और लिटरेसी रेट भी लो रहता है। Which of the following is a major current issue of Pakistan economy? पाकिस्तान persistence energy shortage and high inflation जो है वो major current issue है। Both limit industrial growth and reduce purchasing power। Pakistan development planning is hindered mainly because of weak implementation and project monitoring। जो भी पाकिस्तान के प्लान हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन पुअर होती है और प्रोग्रेस ट्रैक नहीं होती। लाइक प्लान्स बनाए जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती। द concept of redistributive justice in Pakistan's development stresses reducing inequalities through fair access to opportunities, ensure equity and promote social stabilities। Question number 14 is major cause of rural poverty in Pakistan is small land holdings and low productivity। Limited land sizes reduce income and agriculture output। Question number 15 is industrial development is constrained by energy shortage and high production cost। Energy and cost issue reduce investment and output efficiency। Question number 16 is nationalization in 1972 to 1977 led to heavy public sector involvement in banking and industry। ऊपर जैसे हमने देखा कि नेशनलाइजेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी 1970s में,
तो उसकी वजह से जो उसका आउटकम था वो हैवी पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन बैंकिंग एंड इंडस्ट्री हो गया था, और गवर्नमेंट ओनरशिप इंक्रीज स्टेट कंट्रोल बट रिड्यूस प्राइवेट इनिशिएटिव्स। Question number 17 is weak export performance is due to low diversification and reliance on textile। पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की वीक रही है, क्योंकि हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की। और जब एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाती है इकॉनमी, एक ही एक्सपोर्ट पे, तो वो वनरेबल टू शॉक्स हो जाती है। वर्कर्स रेमिटेंस मैटर बिकॉज दे इम्प्रूव करंट अकाउंट एंड सपोर्ट कंजप्शन। रेमिटेंस इंजेक्ट फॉरेन करेंसी एंड इंक्रीज डोमेस्टिक स्पेंडिंग। अब जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ना होने के बराबर है, तो वो रेमिटेंस पे ही डिपेंड करती है फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 19 इज एफडीआई इनफ्लो रिमेन लो ड्यू टू पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। जब किसी मुल्क की पॉलिसीज जो हैं वो उनमें अनसर्टेनिटी हो और सिक्योरिटी कंसर्न भी हो, तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो फॉरेन है या लोकल है, वो इन्वेस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से एफडीआई जो है वो लो रहती है। इन्वेस्टर अवॉइड रिस्की इन्वायरमेंट्स रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, तो उस वजह से भी लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज़ ऑफन ड्राइव बाय करेंसी डेप्रिसिएशन, सप्लाई शॉक्स एंड एनर्जी प्राइजेस। डेप्रिसिएशन की वजह से जो इम्पोर्ट कॉस्ट होती है वो रेज हो जाती है, सप्लाई एंड एनर्जी शॉक्स पुश जनरल प्राइजेस अप। ओके, अल्लाह हाफिज़।